it's not very relevant to remember it. So, hello everybody. I'm Durgesh, and I'll be taking your PSIL lecture. So, in this series, we are covering Western political thought. So, as in the very first lecture, I have covered especially Socrates, right? And after that, so we are going to cover Plato from today onwards. So, in Plato's theories, we are going to study especially the theory of idea, theory of justice, theory of education, theory of philosophy. So, while covering it, we will see some more ideas of Plato and who has especially criticized Plato, right? So each and everything means we will study from each and every aspect. So let me introduce about the background. So as before going on the lecture in previous series also, I have covered the background of Socrates, and after that I have explained the thing, right? So from today onwards, as I've already told you that I'm going to cover Plato. So let me discuss about the Plato first. Plato's background, as I've already told you that. Just 1 second. So Plato's theory of idea we are going to discuss, and after that we are going to cover Plato's theory of justice, and after that Plato's theories or theory of education, and there is a supplement part of the theory of education, that is idea of communism, Plato's theory of communism, right? And these are the theories, and one very important thing, Plato's theory of philosopher king, PKs. So actually each and everything, right, each and everything is just surrounding the idea of justice, or you can say the theory of justice, especially. So these all things are mentioned in Plato's Republic. So Plato has written 3 books, especially the first one is the Republic, and the second one is a Statesman, and the third, where the mature Plato can be seen. So that is the laws. So generally we will study about the Republic. This is the most important book, and all these ideas has been taken from the same book, right? The Republic. So we will discuss about all these ideas. First of all, let me discuss about the background, and after that we will come. And even I have made a proper PPT, so we will discuss from there too. But let me discuss first about the theory of idea. Right. Actually, the theory of idea, Plato was very much influenced from Socrates, right? So he was very much influenced from the theory of ideas from Socrates also. Actually, let me discuss from whom, especially he was very much influenced. So the first person was who have influenced him. He was Socrates. Socrates was the teacher of Plato. It is considered, as I've already told you, it's not very relevant whether there is any person not named Socrates or not. Actually, yeah, but some may not believe that some ideas like Kautilya in Indian philosophy, or you can say ancient Indian political thought. So Kautilya and who is called Chanakya, so he is also not very much relevant. And on the same way, Socrates is not.
very much in use, whether he was any person or just an imagination or just a product of Plato's imagination, right? It's not very much uh, defined. So let me discuss from Socrates what types of which ideas he has acquired. First of all, as I already discussed in the very first class, the theory of knowledge. सो theory of knowledge से बहुत ज़्यादा impressed थे प्लेटो सॉक्रेट्स के, एंड he considered Socrates as the wisest man on earth. मतलब सॉक्रेट्स से ज़्यादा वाइसेस्ट पर्सन कोई है ही नहीं, राइट? एंड सॉक्रेट्स ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है? सॉक्रेट्स के बारे में हम जो भी जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सो ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन प्लेटोज राइटिंग, राइट? So just see, so the method of dialectics, you will see further the method of dialectics, which I have already discussed in previous class, was taken by Plato from Socrates. So, and the theory of idea was also taken by Plato from Socrates. Just this. Right. So, uh, Plato was very much influenced by Socrates, right? So, theory of idea, theory of knowledge, even the theory of justice is also very much influenced from the theory of knowledge of Socrates, right? So, as I've already discussed in the very first class, that Socrates says virtue is knowledge, right? So, एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वर्च्यू इज नॉलेज में उन्होंने क्या बताया. सो जनरली हम देख लेते हैं थोड़ा प्रीवियस क्लास में व्हाट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो प्लेटो ने क्या बोला था? प्लेटो ने बताया कि पर्पज ऑफ लाइफ क्या है. व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? सो ही टोल्ड पर्पज ऑफ लाइफ इज पर्पज ऑफ गुड लाइफ. ध्यान से देखना. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ, राइट? सो पर्पज ऑफ गुड लाइफ, पर्पज ऑफ गुड लाइफ क्या है? पर्पज ऑफ गुड लाइफ आएगा कहाँ से? उन्होंने बोला पर्पज ऑफ गुड लाइफ आएगा वर्च्यू से. वर्च्यू कहाँ से आएगा? नॉलेज से. नॉलेज से नहीं, नॉलेज से मतलब उनका मतलब था आएगा करेक्ट नॉलेज से. करेक्ट नॉलेज कैसे आएगा? मैंने आपको बताया था. करेक्ट नॉलेज आएगा द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स से. द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स क्या है? जो इम्प्रोवाइज करेगा नॉलेज को, राइट? सो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नॉलेज है, सो आफ्टर दैट देयर वुड बी सम, इफ it can be, means the method of dialectics can be monologue, dialogue और पॉलीलॉग. मतलब इसमें कितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स में भी इन्वॉल्व, इवन सिंगल पर्सन है वो भी मेथड्स ऑफ डायलेक्टिक्स से चीजों को सॉल्व कर सकता है. सो जस्ट सी. सो उन्होंने बताया कि पर्पज ऑफ लाइफ, पर्पज ऑफ लाइफ इज पर्पज ऑफ गुड लाइफ. पर्पज ऑफ गुड लाइफ क्या है? हैप्पीनेस, राइट? हैप्पीनेस कहाँ से आएगा? हैप्पीनेस आएगा वर्च्यू से. वर्च्यू कहाँ से आएगा? नॉलेज से. नॉलेज मीन्स करेक्ट नॉलेज से. उन्होंने बोला कि ये जो इंफॉर्मेशन है और जो ओपिनियंस है, ये करेक्ट नॉलेज नहीं है.
द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स जो मैंने पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा अगर वी विल डिस्कस वंस अगेन, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट वंस अगेन. सो मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स से आएगा. डायलेक्टिक्स मतलब जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, डायलॉग के माध्यम से एक थेसिस होता है, दूसरा एंटीथेसिस रहेगा, एंड आफ्टर दैट इन दोनों के इसमें कुछ अच्छाई है, इसमें कुछ अच्छा है, दोनों में से जो भी अच्छी चीजें निकलेगी उसको सिंथेसिस बोलते हैं. सिंथेसिस का मतलब वो करेक्ट नॉलेज नहीं हो गया, वो भी एक तरीके का नॉलेज है. फिर इसमें भी करेंगे, मतलब ये कुछ टाइम तक रहेगा, फिर उसके बाद ये खुद एक थेसिस रहेगा, और फिर इस थेसिस से फिर से एंटीथेसिस, कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, एंड इससे भी कुछ निकलेगा, तो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स से दोबारा से एक सिंथेसिस निकलेगा, तो वो भी नॉलेज नहीं है. तो ये चलता रहता है, ये कभी तक चलता है, इनफाइनाइट टाइम तक. ये कब तक चलेगा? जब तक एक प्योर फॉर्म, मतलब अनचेंजेबल, परमानेंट, मतलब ट्रुथ कैसा होता है भाई? परमानेंट, प्योर होता है, परमानेंट होता है, अनचेंजेबल होता है, इम्यूटेबल होता है. राइट. तो जब तक इस सिचुएशन पे नहीं पहुंच जाएगा कि उसमें कुछ भी चेंज ना किया जा सके, तब तक वो ट्रुथ नहीं है, तब तक वो नॉलेज नहीं है. राइट. एंड नॉलेज जिसको हम वर्च्यू बोलते हैं, करेक्ट नॉलेज, राइट, जिसको हम वर्च्यू बोलते हैं, वो पार्ट है किसका? सोल का. सोल किसका पार्ट है? गॉड का. मतलब आप सोल को बोलो, या फिर वर्च्यू को बोलो, या फिर नॉलेज को बोलो, दीज ऑल आर आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है. तो ये कहां रहते हैं? गॉड्स किंगडम. गॉड्स किंगडम में रहते हैं. वहां पे क्या करते हैं? आपने सुना रहेगा ना, रेस्ट इन पीस. वहां पे ये आराम करते हैं और भगवान की चीजों को देखते रहते हैं. भगवान ने जो चीजें बनाई है, सो दे सीज देम. और फिर क्या करते हैं? अभी आप आगे जाके देखोगे, बहुत, मतलब ये बात याद रखना, फिर मैं दोबारा से ये नहीं बताने वाला हूं कि फिर क्या होता है. वो चीजों को देखते रहते हैं ना प्रॉपरली. भगवान ने जो चीजें बनाई है, गॉड्स के किंगडम में रहते हैं, मतलब सॉल सॉल कहाँ रहता है? गॉड के किंगडम में रहेगा. सो इट विल सी द आर्ट ऑफ गॉड. सो द गॉड हु हैव क्रिएटेड द थिंग्स, राइट. सो इन द किंगडम्स ऑफ गॉड दे सीज द थिंग्स, एंड आफ्टर दैट व्हेन दे कम बैक ऑन अर्थ, मीन्स जब इनका रीबर्थ होता है, इन्हीं सोल का जब रीबर्थ होता है, तो फिर क्या करते हैं? ये रिकलेक्ट करते हैं, चीजों को देखते हैं, फिर से उसको मैच करते हैं. अरे प्लेटो यही बोलेगा, आप देखोगे ना, तो प्लेटो यही बोलेगा कि जब बर्थ होता है, ये जो सोल होता है, इसमें नॉलेज पहले से ही होती है, सिर्फ वो चीजों को देखता है, मैच करता है. मतलब ये जो नॉलेज है, ये किसका वर्च्यू है? ये सोल का वर्च्यू है. समझ में आया? और यहीं से वो थियरी ऑफ फिलोसफर किंग देगा, इतना ध्यान रखना. तो सॉक्रेट से हम कहीं पे थे, कहीं पे आके जो भी मैंने आपको बताया, ये जनरली ये आपके काम ही आने वाला है. सो वंस अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट फ्रॉम होम ही गेट इन्फ्लुएंस. पहली बात तो सॉक्रेट से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे. तो सॉक्रेट से उन्होंने क्या लिया है? द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स. और क्या सॉक्रेट से लिया है? थियरी ऑफ आइडिया. और क्या है? थियरी ऑफ नॉलेज. ध्यान से देखो, मैंने अभी जो ऊपर ये बताया है ना कि सोल ये चीजें रिकलेक्ट करता है, ये फिलोसफर किंग में दोबारा से काम आएगा, ये पूरा माइंड में रखना है, कोई फालतू की चीज नहीं है. सो जस्ट सी, एंड आफ्टर दैट ये सारी चीजें वो सॉक्रेट्स से मिली. इवन सॉक्रेट्स ने जो भी कहा है, ठीक है, सॉक्रेट से वेरी मच वो इन्फ्लुएंस है, एंड ही टोल्ड दैट सॉक्रेट वाज द वाइसेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, राइट. तो सॉक्रेट से सबसे ज्यादा
it is also said that no other philosopher, no other political thinkers has influenced Plato other than Socrates. ठीक है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉक्रेट्स से ही इन्फ्लुएंस थे, सॉक्रेट्स के अलावा वो किससे इन्फ्लुएंस थे? दिस वन मोर person, Pythagoras. So he was a great mathematician. I think you have heard about him. So his formula is a square plus b square equal to c square. I'm not teaching you maths, so that's not very relevant. So actually वो पाइथागोरस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, राइट? तो पाइथागोरस से क्या क्या इन्फ्लुएंस थे? पहली बात तो ये जो थियरी ऑफ सोल है ना, ये पाइथागोरस से। तो थियरी ऑफ सोल पाइथागोरस ने दिया था? नहीं, दिया नहीं था, दिया तो था सॉक्रेट्स ने, बट ये सोल का जो इन्फ्लुएंस आया है ये पाइथागोरस से ही आया है। ऐसा कहा जाता है कि पाइथागोरस इंडिया में भी आए थे। और ये थियरी ऑफ सोल आप देखोगे ना कि जो उन्होंने बोला कि जो नॉलेज है, करेक्ट नॉलेज है, वो चेंज नहीं हो सकता है, इम्यूटेबल नहीं है, अनचेंजेबल है, परमानेंट है, प्योर है, गॉड्स का पार्ट है। तो सोल के बारे में भी वैसा ही बोला जाता है ना कि सोल गॉड का पार्ट है, एंड उसके बाद इसमें सोल कभी ना तो इसको जलाया जा सकता है, ना इसको काटा जा सकता है, ना इसको चेंज किया जा सकता है, परमानेंट है, सिर्फ बॉडी को छोड़ता है। तो सेम थियरी है। मैंने आपको कल बताया था कि किस तरीके से सोफिस्ट बॉडी को इंपॉर्टेंस देते थे एंड सॉक्रेट्स सोल को इंपॉर्टेंस देते थे, राइट? सो जो सोफिस्ट थे वो मैटर को इंपॉर्टेंट देते थे एंड सॉक्रेट्स आइडिया को इंपॉर्टेंट देते थे। तो ये जो थियरी ऑफ सोल है, सोल का जो कॉन्सेप्ट है, सो ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम पाइथागोरस। पाइथागोरस से और क्या भाई, अभी मैंने आपको बताया था ना रीबर्थ का कॉन्सेप्ट, ठीक है? कहां से गया रीबर्थ का कॉन्सेप्ट? द सेम थिंग। सो इट इज बिलीव दैट पाइथागोरस केम इनटू इंडिया इन एंशिएंट टाइम, राइट? सो अभी रीबर्थ के बारे में भी जो बताया है, सो इट इज ऑल्सो फ्रॉम टेकन फ्रॉम whom? Pythagoras. And after that, the theory of, not the theory, the concept of ratio, proportion, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें कहां से? ये भी पाइथागोरस से ही इन्फ्लुएंस थे। तो क्या मैथ्स में इंटरेस्ट था प्लेटो का? बिल्कुल था। इवन उनका इंस्टीट्यूशन था, द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय प्लेटो, दैट इज कॉल्ड एकेडमी। जो आज देखते हो ना बहुत सारी एकेडमी है, ये एकेडमी, वो एकेडमी, ठीक है? तो फर्स्ट एकेडमी किसने एस्टैब्लिश की थी? प्लेटो ने। और एकेडमी के बाहर क्या लिखा था? लिखा था persons having no knowledge of क्या? ज्योमेट्री, सॉरी जियोमेट्री, और नॉट अलाउड सो जिसको ज्योमेट्री का नॉलेज है वो इंटर ही नहीं कर सकता है अनअकैडमी, सॉरी अनअकैडमी बोल रहा हूँ, वेरी मच सॉरी फॉर द सेम। एकेडमी, एक्चुअली सभी लोगों ने एकेडमी लगा रखा है ना नाम के आगे, तो फिर पता ही नहीं चलता कौन सा एकेडमी है, कौन सा नो एकेडमी है। So just one thing, one more thing, and other person with whom he was very much influenced, there was one more person, Heraclitus. हेराक्लाइटस ने क्या बोला? हेराक्लाइटस ने बोला, so actually I am very much new and don't know how to write on a pad, on this pad, right? So that's why my writing is not very good. So Heraclitus ने क्या बोला? This world of matter is changing. So the idea of change, मतलब कि ये जो वर्ड है ना, ये चेंज होता रहेगा। ये जो वर्ड है ये चेंज होता रहेगा। तो आइडिया ऑफ चेंज किससे एक्वायर किया है? आप देखोगे आइडिया ऑफ चेंज बताते हैं, बिल्कुल रेडिकल है प्लेटो, ठीक है?
मतलब पूरा सिस्टम ही पूरा चेंज कर देना चाहते हैं। तो जनरली दिस वर्ड ऑफ मैटर इज चेंजेबल, और उन्होंने बताया है कि ये जो मैटर का वर्ड है ये चेंज होता रहता है। उन्होंने आगे आइडिया ऑफ थियरी में हम देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने बताया ये सारी चीजें। एंड वन मोर पर्सन हु हैज influenced Plato very much, he was Parmenides. Parmenides told there is, he has given the idea of permanence, ठीक है, the idea of permanence. There is continuity and change. He has given the idea of continuity and change. ध्यान से सुनो, अभी आप कंफ्यूज मत होना कि दोनों आइडिया ऐसे साथ में आ सकते हैं। एक तरफ तो वो बोल रहे हैं क्या, द आइडिया ऑफ चेंज, दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं आइडिया ऑफ परमानेंस। तो एक पर्सन दोनों चीजों से किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकता है? ध्यान से सुनो, इफ देर इज ए चेंज ना, सो परमानेंस है। कैसे है? अरे कोई चीज कभी चेंज होगी जब कोई चीज स्थिर रहेगा। इसमें से अगर कोई चीज चेंज हो रहा है तो नो डाउट इसमें कुछ तो परमानेंट रहा होगा, तभी तो कोई ये चेंज हुआ ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सपोज कोई भी चीज है भाई, चेंज कभी पॉसिबल होगा। सो मीनिंग ऑफ द टाइम आई टोल्ड यू लाइक लेट इट गो। सो आप देखते हो ना, राइट टू लाइफ की वजह से बहुत सारे लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। राइट टू लाइफ है इंडिया में, तो क्या राइट टू डेथ है? अरे बिल्कुल है। राइट टू लाइफ कंसिस्ट राइट टू डेथ इन इटसेल्फ, राइट। जिस तरीके से सपोज, नहीं समझे, इसमें मनेका गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस है ना, आप उसको पढ़ लेना तो समझ में आएगा। सब छोड़ो, इसमें अरे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है? मतलब सबको बोलोगे बोलो जबरदस्ती, मतलब कि यू हैव राइट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। इफ ही डोंट वांट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, सो व्हाट ही कैन डू, ही कैन कीप साइलेंस ना। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड expression shows that anyone can keep silence also, right? So right to freedom of speech and expression also consists right to keep silence in itself, right? So I think you have got my point. So if there is an idea of permanence, तभी तो आइडिया ऑफ चेंज पॉसिबल है, नहीं तो चेंज होगा कहाँ? अगर कोई चीज ऑलरेडी चेंज ही हो रही तो फिर तो वो कंटिन्यूटी हो गई ना। फिर उसमें अगर कुछ चीज चेंज भी होगा तो पता ही नहीं चलेगा वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं समझ में आया है तो बस इतना समझ लो कि हेराक्लाइटस ने कौन सा आइडिया दिया, द वर्ड ऑफ मैटर इज चेंजेबल, एंड व्हाट द पार्मेनाइडस हैज टोल्ड, ही हैज गिवन द आइडिया ऑफ परमानेंस। कि मतलब ये चेंज होते हुए इस वर्ड के साथ में कुछ चीजें परमानेंट भी है, तभी तो उसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। सो प्लेटो वॉज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम all these philosophers, mathematicians and personalities, right? So ये तो रही बात। अब इनसे वो इन्फ्लुएंस थे, हमें पता कैसे चला? अरे जब हम प्लेटो को पढ़ेंगे सो इजिली हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द थियरी ऑफ आइडिया ऑफ प्लेटो। So let me switch on the AC. बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। So theory of idea, theory of idea क्या है? So what Plato said, देखो ध्यान से, अरे थियरी ऑफ आइडिया कुछ भी नहीं है,
जो थियरी ऑफ आइडिया, जो सॉक्रेट्स ने थियरी ऑफ नॉलेज दिया था, जो थियरी ऑफ आइडिया दिया था, जनरली वही है। उसको थोड़ा अच्छे से इन्होंने दिखाया है, थोड़ा सा इसमें डेवलपमेंट हुआ है थियरी ऑफ आइडिया में। तो इसमें डेवलपमेंट क्या हुआ है, उन्हें बोला कि जो आइडिया है ना, सपोज ये अनचेंजेबल है, ये इम्यूटेबल है, ये परमानेंट है, ठीक है, ये प्योर है। बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं, ये वर्ड में ऐसा मैटर जैसा कुछ नहीं है। जो चीजें हमें दिख रही है सारी क्या है, कुछ भी नहीं है, सब फॉल्सिफिकेशन है, सब इल्यूजन है। उन्होंने एग्जाम्पल दिए, देखो सपोज मेरे सामने चेयर है, एसी भी है, मॉनिटर है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, चलो मेरा लैपटॉप है, मेरा मोबाइल फोन भी है, भाई आपका भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं। देखो ध्यान से देखो, अच्छा ये चेयर है ना, चेयर क्या है, आप क्या बोलोगे, जिसमें मतलब 4 पैर होते हैं और बैठने की जगह होती है, वो चेयर है। अच्छा, क्या चेयर में 5 नहीं हो सकते पैर? ये छोटा सा जो टॉय होता है उसको भी चेयर बोलते हैं। कोई बहुत बड़ा सा चेयर हो जाए उसको भी चेयर बोलेंगे। सपोज किसी ने बहुत बड़ा सिंहासन बना दिया, बोल दिया कि 108 फीट लंबा सिंहासन बना है, तो क्या वो भी चेयर ही तो है, और क्या है, राइट। 108 फीट ऐसे ही बोल दिया, ऐसा कुछ बना नहीं है। तो सेम टू सेम एसी के लिए हो सकता है। आप कहीं पे जाएंगे किसी मॉल में, जैसे यहाँ ऑफिस में देख रहे हो, छोड़ो ऑफिस में छोड़ो, आप ये देखो, कई कोई बोलता है 1 टन का एसी है, 2 टन का एसी है, 50 टन का एसी है, पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता है, आई डोंट नो। बट हाँ, मतलब कोई छोटी सी चीज, या फिर हो सकता है डमी रखा हो एसी का, एसी हो ही ना, बट आप देखोगे तो बोलोगे हाँ एसी है। सेम टू सेम मोबाइल आपने देखा है, मोबाइल का डमी भी देखा रहेगा, आपको लगेगा हाँ मोबाइल है, बट आप उसको चलाओगे तो पता चलेगा मोबाइल है ही नहीं। सेम टू सेम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सबसे अच्छा एग्जांपल। सपोज आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, कि आपको, आप किसी शॉप पे गए, वहां पर आपने स्वीट्स देखा और आपने उसे उठा के फटाफट खा ही लिया बिना पूछे। जैसे ही खाया आपने फटाफट फिर मुंह से निकाल दिया, रीजन आपको पता चला अरे ये मिठाई जैसा दिख रहा था बट ये मिठाई है नहीं, राइट। तो क्या किसी, आप देखते हो ना, कलाकंद होता है, लड्डू होता है, इनका शेप यही होता है, तो अगर इस शेप का, जरूरी है शेप अगर हटा दे, ये टूटा फूटा हो, तो क्या आप इसको लड्डू नहीं बोलोगे क्या? क्या शेप से चीजें डिसाइड होंगी? क्या आप उनका शेप देख के बता सकते हो? अरे इंसान है, सब छोड़ो, सबको छोड़ दो, इंसान है, बॉडी है, अरे कोई भी जिसकी 2 आंखें है, हाथ पैर है, ठीक है, प्रॉपर ये सारी चीजें हैं, आप उसको बोलोगे इंसान है। जिसके नहीं है वो भी तो इंसान है। और दूसरी बात ये सोचो, इंसान चाहे वो कैसा भी हो, मतलब आप इंसान को देखते ही पहचान जाते हो ना कि उसके अंदर कुछ चीजें हो ना हो, कुछ भी ना हो, बट अगर उसके अंदर वो जीवित है तो आप उसको बोलते हो इंसान है। बट वही उसकी सोल गई, क्या बोलते हो आप? इंसान बोलते हो क्या? बॉडी बोलने लग जाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो उन्होंने बोला कि जैसे चेयर है, तो चेयर चेयर नहीं है, उसमें आइडिया ऑफ चेयर है, इसलिए उसको चेयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ भी है, सपोज लैपटॉप है ना, तो ये लैपटॉप नहीं है, क्या है, इसमें आइडिया ऑफ लैपटॉप है, इसलिए इसको लैपटॉप बोलते हैं। सपोज बॉडी है, बॉडी सॉरी, पर्सन है, कोई भी पर्सन है, तो इसमें क्या है, आइडिया ऑफ पर्सन है ना, इसलिए उसको पर्सन बोला हमने, ठीक है। तो अगर आइडिया पर्सन नहीं होता तो क्या इसको पर्सन बोलते हैं? चीजें समझ में आई या नहीं आई? देखो ध्यान से देखो, सपोज, सब छोड़ो, एक सबसे अच्छा एग्जांपल दूं। कभी आप देखते हो ना,
प्लेटो ने दिया जो आइडिया ऑफ थियरी ऑफ आइडिया, सॉरी थियरी ऑफ आइडिया हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, प्लेटो। तो इन्होंने क्या बोला कि जो चीजें हमें दिखती है ना, दैट्स नॉट कोर आइडिया, ये कोर ऑब्जेक्ट नहीं। इसमें कोर क्या है, इसमें मेन थिंग क्या है, आइडिया। बाकी जो भी चीजें हमें दिखती हैं दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ दैट आइडिया। जो चीजें हमें दिख रही है ना वो रिफ्लेक्शन है उस आइडिया का, वो प्रॉपर मतलब वो खुद से कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। मतलब आप किसी ऐसी चीज को, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप देखते ही बोलो बस यही चेयर है, इसके अलावा दुनिया में कोई चेयर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फिर वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर उसका कुछ भी हुआ, उसमें से कुछ, उसका आइडिया ऑफ चेयर में से कुछ भी खत्म हुआ ना, तो आप उसको चेयर बोलना बंद कर दोगे, राइट। अगर उसका एक पैर टूटा ना, तो आप उसको बोलोगे टूटी हुई चेयर, मतलब उसमें से आइडिया ऑफ चेयर खत्म हो जाएगा। आपको एक सीधा सीधा एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी कोई इंसान होता है आपके साथ में, अगर वो कुछ अभद्रता कहता है तो आप बोलते हो अरे इंसान हो गया तुम, इंसानों जैसी हरकत तो नहीं दिख रही है तुम्हारी। तो क्या है, मतलब लगता है ना कि उसके अंदर से इंसानियत खत्म हो गई। आपने सुना होगा ना कि अरे इसके अंदर से इंसानियत खत्म हो गई, इंसानियत मर गई। वो इंसान तो होता है बट इंसानों वाले लक्षण नहीं होते उसमें, मतलब आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म नहीं होता है उसमें। समझ में आया? तो मानवीयता का गुण नहीं होता है, सो इसलिए मतलब आइडिया खत्म तो सब खत्म। तो उन्होंने क्या बताया कि किसी भी चीज में आइडिया कोर है। कोई भी चीज जो भी हमें दिख रही है वो है ही नहीं। जैसे अगर मेरे सामने कोई रूम है तो वो रूम ही नहीं है, सिर्फ आइडिया ऑफ रूम है। क्यों? रूम कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। तो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट करेंगे तो आई टेक अ सेपरेट लेक्चर ऑन इट, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो उन्होंने क्या बताया कि जो भी चीजें हमने देखी वो क्या है, मतलब जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो सिर्फ वर्ड ऑफ इल्यूजन है, मतलब वो रियल नहीं है। दैट इज नॉट द रियलिटी, राइट। उसमें रियल क्या है? रियल है आइडिया। इसी चीज को समझाने के लिए प्लेटो ने एक आइडिया ऑफ एलोगरी ऑफ केव दिया। देखो ध्यान से देखो, एलोगरी ऑफ केव। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो संसार है ना ये केव की तरह, मतलब ये जो वर्ड है एलिगोरी का मतलब एक मोरल स्टोरी है। एलिगोरी का मतलब जनरली कंपेयर करना होता है चीजों को, तो एक मोरल स्टोरी के थ्रू, वो कंपेरिजन के थ्रू बता रहे। सबसे पहले मैं आपको मेथड्स वगैरह बताऊंगा, कौन कौन से मेथड्स यूज किए थे। जैसे मेथड्स ऑफ डायलेक्टिक्स यूज कर रहे थे प्लेटो। एंड द सेकंड थिंग, मेथड्स ऑफ डायलेक्टिक्स यूज किया उन्होंने। ठीक है, उनका प्रोसेस क्या था? डिडक्टिव थिंकिंग थी। राइट, डिडक्टिव थिंकिंग क्या होता है मैं बता रहा हूँ। पहले ये देखो, उन्होंने आइडिया को क्यों, ये वर्ड ऑफ इल्यूजन क्यों बताया उन्होंने कि जो भी दिख रहा है आपको वो इल्यूजन है, वो ऐसा कुछ नहीं है। सपोज ये केव है, राइट, देयर इज अ केव एंड देयर इज पर्संस, मतलब हम लोग जो इस संसार में है ना, सेम टू सेम। देखो अगर आप देखोगे तो जो हिंदुइज्म की फिलॉसफी है ना, जनरली जो एंशिएंट इंडियन एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में जो चीजों जो दिखाया गया है कि संसार कुछ नहीं है, राइट, सब झूठ है, सब माया है, तो सेम टू सेम देखो यहाँ भी लगभग प्लेटो, लगभग नहीं, वही समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो बोल रहे हैं कि ये जो ये दुनिया है ये झूठी है, मतलब ये बिल्कुल केव की तरह है, ठीक है, ये केव की तरह है। ठीक है, तो केव का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे केव
बता रहे हैं इग्नोरेंस, सॉरी केव बता रहे हैं वो वर्ड, और इसके अंदर बिल्कुल अंधेरा है। तो अंधेरा क्या है? वो इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस मतलब वही अज्ञान। ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं इसके अंदर, जैसे हम लोग हैं ना इस संसार में, तो इसके अंदर कुछ लोग बैठे हैं, उनके हाथ जो है बंधे हुए पीछे की तरफ, इनके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं। हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं मतलब टाइड हैंड का मतलब उन्होंने बताया कि ये लोग ना, इनमें एरोगेंस बहुत है, एरोगेंस से बंधे हुए हैं, देयर हैंड्स आर टाइड। तो उन्होंने जो टाइड लिखा है, टाइड बताया है, वो एरोगेंस से बंधा हुआ है। ठीक है, जस्ट वन सेकंड। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो केव है इसमें बिल्कुल अंधेरा है। उन्होंने एक स्टोरी बताई, ठीक है, एक तरीके से आप मोरल स्टोरी बोल सकते हैं, इसको एलोगरी बोलते हैं, जिसमें कंपेयर करके चीजों को दिखाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल अंधेरा है। अंधेरे को उन्होंने बताया कि नॉलेज नहीं, मतलब अज्ञानता भरी दुनिया है, आप सीधा सीधा बोल सकते हो, और इनके हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने आइडिया, थियरी ऑफ आइडिया को समझाने के लिए आइडिया ऑफ केव दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि ये एरोगेंस से बंधे हुए हैं, ये बाहर निकल के देखना ही नहीं चाहते। बाहर क्या है? इस दुनिया से बाहर निकल के नहीं देखना चाहते। बाहर क्या है? बाहर ज्ञान का प्रकाश है, मतलब सन, वो सिंबलाइज करते हैं कि बाहर सन है। ठीक है, जब सन यहाँ आएगा इसके डोर पर, ठीक है, तो यहां से इसकी लाइट पड़ेगी और पीछे इसकी जो दीवार रहेगी। जब किसी चीज की लाइट पड़ेगी तो जो बाहर की चीजें हैं तो उनके इमेजेस दिखेंगे, और जो अंदर बैठे हुए लोग हैं ना, वो समझेंगे अरे यही रियलिटी है, ये चीजें ऐसी है ऐसी है, क्योंकि उनको बाहर का तो पता ही नहीं है। उनको जो इनकी इमेज दिख रही है ना, जो बाहर की रियलिटी है उसकी जो इमेज दिख रही है, सिर्फ उसी को उन्होंने रियलिटी बोल दिया है। तो अभी ये क्या समझा रहे हैं? उन्होंने बताया ना कि ये सब आइडिया का रिफ्लेक्शन ही है, जो चीजें आप देख रहे हो ये रिफ्लेक्शन ही है। फिर बाद में उन्होंने बताया कि कोई एक पर्सन आता है, कहाँ से आता है? गुफा से थोड़ी ना आएगा, बाहर से ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो एनलाइटेंड होना चाहिए, तभी वो आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि अंधकार में अगर वो भी अंधकार में रहेगा तो he can't let you out from there, right? So he is coming, and what is it? He has loosened your hand, right? And after that, just one second, let us taste. तो आपके हाथ को खोल देता है, ठीक है, और वो आपको बाहर लेके जाता है, बाहर लेके जाता है, बाहर की दुनिया को दिखाता है। सबसे पहले जब आप बाहर आते हो तो जैसे ही आप लाइट को देखोगे तो आपकी आंखों में दर्द होगा। क्यों? अचानक से कल हम लाइट देखते हैं, हमारी आंखों में दर्द होता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम थोड़ी देर यहाँ पे रहते हैं, थोड़ा सा एफर्ट दिखाते हैं, तो फिर हमें दिखने लगता है, फिर जो बाहर की चीजें हैं फिर वो रियलिटी है, फिर रियलिटी हमें दिखने लगती है, राइट? तो इससे देखो वो क्या समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये मतलब सिर्फ यही है, आपको मैं पीपीटी में जो पढ़ाऊंगा वो हो सकता है कि प्रॉपरली है, सारा कुछ है, बट वहां से समझ में नहीं आने वाली चीजें। मतलब अगर नोट्स से सब कुछ समझ में आ जाए तो फिर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बुक्स पढ़ के और नोट्स पढ़ के समझ सकते हो चीजों को। देखो, जस्ट वन सेकंड। तो वो दो तीन चीजें बता रहे हैं। एक तो वो बता रहे हैं कि ये जो केव है, ये वर्ड ऑफ, ये वर्ड है ना, जो डार्कनेस है, अंधेरा है, वो क्या है? जो डार्कनेस है वो इग्नोरेंस है, अभी तो बताया। जो
हैंड्स आर टाइड, जो टाइड है ना वो एरोगेंस है। मतलब लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं, बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर सन है, सिंबल ऑफ नॉलेज। सन को वैसे भी इंडिया में भी देखोगे आप सिंबल ऑफ नॉलेज ही देखा जाता है। तो जनरली आप ग्रीक फिलोसफर्स को देखोगे तो बोलोगे अरे ये इंडिया का आइडिया है, इन्होंने चुरा लिया। नहीं, जिसने लिख दिया उसका हो गया, और हु नोस कि आइडिया उनका था या हमारा था। ठीक है, बाकी कुछ बचा गया? हाँ, जो इमेजेस दिख रहे थे वो इल्यूजन थे भाई, वो रियलिटी नहीं थी। समझ में आया? तो वो कह रहे हैं कि हाँ, अभी बताया ना आंख में थोड़ा सा पेन हुआ, तो जो पेन है वो एफर्ट से। तो समझ में आई चीजें कि ये जो है वर्ड ऑफ आइडिया है वो क्या है, जस्ट इल्यूजन है, रियलिटी नहीं है। राइट? सो ये सारी चीजें हैं, लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, लोग जानना ही नहीं चाहते हैं चीजों को, रियलिटी देखना ही नहीं चाहते हैं। बट अगर ऐसा कोई टीचर है, राइट, कि जो ऑलरेडी सारी चीजों को जानता है, वो आता है और जिनके हाथ एरोगेंस से बंधे, ठीक है, उनके हाथों को खोल देता है, मतलब उनको एजुकेट करता है अच्छे से। एंड आफ्टर दैट जब वो एजुकेट हो जाते हैं, जब उनमें नॉलेज आता है, जब ज्ञान आता है, तब वो बाहर जाते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं। जब उनको नॉलेज होता है तब उन्हें समझ में आता है कि जो भी उन्होंने जो चीजें वो देख रहे थे, ये वर्ल्ड में जो चीजें उन्हें दिखाई पड़ रही थी, वो सारा कुछ सारा क्या था, इल्यूजन था। राइट? तो ये थियरी ऑफ आइडिया है प्लेटो का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, थियरी ऑफ आइडिया हो गया। एंड थियरी ऑफ आइडिया अगर आप बोलो तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पीपीटी हमने बनाया है। सो प्लेटोस की जो थियरी है उसमें हमने क्या पढ़ा कि थियरी ऑफ आइडिया सबसे पहले देखा, अभी थियरी ऑफ जस्टिस और थियरी ऑफ एजुकेशन देखेंगे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ इसमें से कुछ छूटा ना हो, क्योंकि सारी चीजें एक साथ माइंड में आती नहीं है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, आफ्टर दैट। सो थियरी ऑफ आइडिया में उन्होंने क्या बताया कि जो आइडियल है, सिर्फ आइडिया इज रियल। ठीक है, सो आइडियल ही रियल है, सो सिर्फ आइडिया रियल है, बाकी चीजें नहीं। उन्होंने बताया आइडिया क्या है, कोर है, बाकी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं वो उसका सिर्फ रिफ्लेक्शन है, इल्यूजन है। मतलब जो भी चीजें हम देख रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इल्यूजन है। अच्छा, जो सोफिस्ट थे इसके बिल्कुल अलग थे। मतलब वो क्या मानते थे, जो चीजें दिख रही है, जो मैटर है, वो बॉडी को मानते थे, वो जो संसार दिख रहा है उन सारी चीजों को मानते थे। तो सोफिस्ट इस तरीके से। तो ही हैज गिवन आइडिया ऑफ केव, मतलब ये सारी चीजें समझाने के लिए कि सबको देखो ये केव है, यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये लोग बैठे हुए हैं और इनको मतलब यहाँ से लाइट आ रही है ना, तो इनके सामने जो दीवार है, यहाँ पे जो चीजें दिखेंगी, जो सिंबल्स दिखेंगे, जो यहाँ पे इमेजेस दिखेंगी, वो इनको क्या लगेगा, इनको लगेगा रियलिटी है, क्योंकि ये केव से बाहर कभी गए ही नहीं। ठीक है, तो ये इनको रियलिटी दिखेगी। बट एक्चुअल में है क्या, चीजें कुछ और हैं, ये सिर्फ उसका इमेज देख पा रहे हैं। ऐसा प्लेटो का आइडिया है। और यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग के एटलीस्ट सॉक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल, इनको समझने के लिए मतलब थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चीजें हो सकता है समझ में ना आए एक बार में, तो ये ध्यान देना कि इनको समझने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। आगे के थिंकर्स इतने मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो जो बोल रहे हैं उसका मतलब वही है, बट ये जो बोल रहे हैं उसका मतलब वो नहीं है, उसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। तो ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल एक्चुअली। हाँ, वो जनरली करना क्या चाहते हैं, मतलब वो रियलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं दिखा रहे कि आइडिया रियल है। उनके कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना, जिसके चक्कर में पड़े हुए हो, जहां परेशान हो रहे हो, वर्ड ऑफ मैटर में आप देखोगे उनके लिए मैटर मैटर नहीं करता है। ठीक है, इवन वो एक बड़े घर से थे, एस्ट्रोग्रेड थे, बट ठीक है। तो आप आगे चल के ये देखोगे ना
कि क्या बताया, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल, ही इज टॉकिंग अबाउट द वन, सिर्फ वो एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ वही कोर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स द परफेक्ट, दिस इज रियल इज एक्चुअली आइडिया। वो बोल रहे हैं कि सिर्फ वही एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द आइडिया। एंड उनके आइडिया को दिखाने का मतलब ये नहीं था कि मैटर फर्स्ट है, मतलब सुपीरियर क्या है, मैटर सुपीरियर है या आइडिया सुपीरियर है। उनका दिखाने का मतलब ये था ना कि ये जो वर्ल्ड आप देख रहे हो दैट इज फुल ऑफ इम्परफेक्शन, दिस इज नॉट परफेक्ट, राइट। सो हिज एलिगोरी ऑफ केव, उन्होंने क्या दिखा इसमें, वर्ड ऑफ मैटर इज वर्ड ऑफ इग्नोरेंस, मतलब ये जो संसार देख रहे हो आप मैटर है, ये सारा क्या है, इग्नोरेंस। रियल परफेक्ट, ये उन्होंने बताया कि आइडिया क्या है, वो रियल है, वो परफेक्ट है, इम्यूटेबल है, सेल्फ एग्जिस्टेंस एंटिटी है, मतलब आइडिया किसी की वजह से नहीं है। बॉडी क्या है, बॉडी में सोल है तो ठीक है, नहीं तो गया। आइडिया ऑफ चेयर में क्या है, स्वीट्स, देखो आप अगर कोई स्वीट्स है, ठीक है, तो वो कभी तक, वो अगर स्वीट्स का सेब बना के आपको दे दे, बिल्कुल आप खाओगे, फिर बाहर निकालोगे मुंह से, वो बोलोगे कि अरे ये तो स्वीट्स है ही नहीं, पता नहीं क्या दे दिए। तो जब तक उसमें क्वालिटी नहीं आएगी, जब तक उसमें आइडिया नहीं रहेगा, तब तक उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। बट आइडिया सेल्फ एग्जिस्टेंस है, उसका सेप हो या ना हो, ठीक है। इंसान के दो पैर हो, दो हाथ हो, दो आंखें हो या ना हो, बट अगर उसमें सोल है तो वो ह्यूमन है, ठीक है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इम्परफेक्शंस एंड आउटवर्डली ऑब्जेक्ट्स ऑफ द परसेप्शन, सिर्फ मतलब जो ये जो आउटवर्डली थिंग्स है, परसेप्शन है, ये इल्यूजन है। द आइडिया कैन एग्जिस्ट विदाउट थिंग्स लाइक ब्यूटी। ब्यूटी देखो, ब्यूटी क्या है, अगर ब्यूटी का डेफिनेशन मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे जो अच्छा दिखता है, ठीक है। कोई लोग बोलेंगे नहीं, जो अच्छा नहीं दिखता है, जो दिल से अच्छा होता है। तो ब्यूटी एग्जैक्टली है क्या, आप बोलोगे जो जिसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, कोई बोलेगा जो थोड़ा सा गोरा होता है, कोई बोलेगा नहीं ब्लैक ब्यूटी इज परफेक्ट। सो मतलब ब्यूटी की कोई डेफिनेशन है क्या, मतलब उस आइडिया सेल्फ एग्जिस्टेंस है, राइट। बट ऐसा आप पकड़ के ऐसा दिखा नहीं सकते कि सर ये देखो ये ब्यूटी है और इसके अलावा और कोई ब्यूटी हो ही नहीं सकता। तो ब्यूटी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसके लिए कोई चीज होनी चाहिए नहीं। क्यों, आइडिया में भी तो ब्यूटी हो सकती है, जरूरी है कोई इंसानी ब्यूटी हो, राइट, इंसान में ही ब्यूटी हो। किसी का आर्ट भी तो ब्यूटीफुल हो सकता है, ठीक है, किसी का आर्टिस्टिक नेचर भी तो हो सकता है, किसी का नेचर ब्यूटीफुल हो सकता है। तो ब्यूटी की कोई डेफिनेशन है क्या, तो आइडिया एग्जिस्ट, आइडिया कैन एग्जिस्ट